وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. جو لوگ علم نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے خود کیوں نہیں کلام کرتا یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ ایسی ہی باتیں ان سے پہلے لوگ بھی کیا کرتے تھے۔ ان سب کے دل ایک جیسے ہیں۔ یقین رکھنے والوں کے لیے ہم نشانیاں کھول کر بیان کرتے ہیں۔ شان نزول، یہ آیت ان لوگوں کے اعتراضات کے جواب میں نازل ہوئی جو اللہ کی قدرت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر شک کرتے تھے۔ مشرکین مکہ، مشرکین نے بارہا کہا کہ اگر اللہ واقعی ہے تو وہ ہم سے براہ راست بات کیوں نہیں کرتا یا کوئی ایسی واضح نشانی کیوں نہیں بھیجتا جس سے ہمیں یقین آ جائے۔ یہودی اور عیسائی علماء، یہودی اور عیسائی بھی اللہ کے نبی پر شک کرتے تھے اور اپنی کتابوں کے واضح دلائل کے باوجود مزید نشانیوں کا مطالبہ کرتے تھے۔ اہل کتاب اور مشرکین کا موازنہ، آیت نے واضح کیا کہ یہ اعتراضات کوئی نئے نہیں ہیں۔ ان سے پہلے کی امتوں نے بھی یہی باتیں کہی تھیں، جیسے بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے عجیب و غریب مطالبات کیے تھے۔ وقال الذین لا یعلمون، جو لوگ علم نہیں رکھتے سے مراد وہ لوگ ہیں جو حقیقت کو نہیں سمجھتے یا اپنی ضد اور جہالت کی وجہ سے اللہ کی نشانیاں ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ لولا یکلمنا للہ او تأتینا آیا، ان کا مطالبہ تھا کہ اللہ خود ہم سے بات کرے یا کوئی خاص نشانی ہمیں دکھائی جائے تاکہ ہم یقین کریں۔ کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اعتراضات کوئی نئے نہیں ہیں بلکہ سابقہ امتوں کے بھی یہی مطالبات تھے۔ تشبہت قلوبہم، ان کے دل ایک جیسے ہیں، یعنی سابقہ امتوں کی ضد، اناد اور نافرمانی کی عادات ان لوگوں میں بھی موجود ہیں۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، اللہ نے نشانیاں ان لوگوں کے لیے واضح کر دی ہیں جو یقین رکھتے ہیں۔ یہ نشانیوں کا مقصد ان لوگوں کو سمجھانا ہے جو ضد اور اناد کے بجائے حقیقت کو تسلیم کرنے والے ہوں۔ تفسیر کے اہم نکات، نشانیوں کا مطالبہ۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ ضدی ہے اور ہٹ دھرم لوگ ہر دور میں اللہ کی طرف سے نشانیوں کا مطالبہ کرتے رہے ہیں، حالانکہ ان کے پاس پہلے سے واضح دلائل اور نشانیاں موجود تھیں۔ ضدی طبیعت، ان کا مقصد نشانیاں دیکھ کر ایمان لانا نہیں تھا بلکہ اپنی ہٹ دھرمی اور اللہ کی مرضی کے خلاف چلنا تھا۔ سابقہ امتوں کی مشابہت، یہ آیت اہل کتاب اور مشرکین کی ضد کو بنی اسرائیل کے رویے سے مشابہ قرار دیتی ہے، جنہوں نے حضرت موسیٰ سے بھی ناقابل قبول مطالبات کیے تھے۔ یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں، یہ آیت یاد دلاتی ہے کہ اللہ کی نشانیاں ان لوگوں کے لیے ہیں جو دل سے یقین رکھتے ہیں۔ ضدی اور جاہل لوگ ان نشانیوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اللہ کی حکمت، اللہ ہے کے لیے ہر چیز ممکن ہے، لیکن وہ نشانیاں ان لوگوں کو نہیں دکھاتا جو ایمان کے بجائے مزید شک اور انکار کی راہ اپناتے ہیں۔ عملی سبق، اللہ کی نشانیاں تسلیم کریں۔ ہمیں اللہ کی تخلیق، قرآن کی ہدایات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ کر ایمان لانا چاہیے، بجائے اس کے کہ غیر ضروری نشانیاں طلب کریں۔ ضدی رویے سے بچیں، ضد اور ہٹ دھرمی کے بجائے حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے اور اپنی زندگی میں اللہ کے احکامات کو نافذ کرنا چاہیے۔ یقین کی اہمیت، ایمان دل سے ہوتا ہے اور جو لوگ ضدی نہ ہوں ان کے لیے اللہ کی نشانیاں ہر طرف موجود ہیں۔ خلاصہ، یہ آیت ان ضدی اور جاہل لوگوں کے اعتراضات کا جواب ہے جو اللہ سے نشانیاں طلب کرتے ہیں، حالانکہ انہیں پہلے ہی کافی دلائل مل چکے ہیں۔ اللہ کی نشانیاں صرف ان لوگوں کے لیے فائدہ مند ہیں جو یقین رکھتے ہیں۔
हैं और हकीकत को समझना चाहते हैं। हिकमत, इंसानी फितरत की वजाहत। ये आयत इंसानी जिद और जहालत को नुमायां करती है कि कुछ लोग अल्लाह की वाज़ेह निशानियां देखने के बावजूद मजीद मुतालबात करते हैं और हकीकत है को मानने से ग्रीज करते हैं। साबिका इम्तों से सबक आयत बताती है कि हर दौर में लोग अल्लाह के नबियों और किताबों पर एतराज करते रहे हैं। ये हमें उस बात की हिकमत सिखाती है कि माजी की इम्तों के रवैये से अबरत हासिल करें और उनके गलत रास्तों पर न चलें। यकीन की अहमियत, अल्लाह की निशानियां इन लोगों के लिए फायदामंद हैं जो यकीन है रखते हैं। ज़दी और जाहल लोग निशानियों को भी झटलाते हैं। हदायत का जरिया, आयत बताती है कि हदायत इन लोगों के लिए है जो सच्चाई को कबूल करना चाहते हैं। अल्लाह का निज़ाम इन लोगों के लिए खुलता है जो ईमान लाने की नीयत रखते हैं। अल्लाह की हिकमत, अल्लाह हर वक्त और हर बात को अपनी हिकमत के मुताबिक करता है। अगर वो चाहे तो निशानियां भेज सकता है, लेकिन उसका निज़ाम इम्तिहान पर मबनी है, न कि ज़बरदस्ती ईमान लाने पर। दिलों का हाल जानना, अल्लाह जानता है कि कौन सच्चाई को मानना चाहता है और कौन महज एतराज़ात कर रहा है। ये उसकी कामिल कुदरत और इल्म का मजहर है। हिदायत देने का अख्तियार, हिदायत देना अल्लाह की कुदरत में है। वो निशानियां सिर्फ इन लोगों के लिए वाज़ेह करता है जो दिल से ईमान लाने के लिए तैयार हैं। इम्तों का अंजाम, साबिका कौमों की मिसालें अल्लाह की कुदरत की याद दहानी हैं, जिन्होंने निशानियां झटलाएं और अल्लाह के अजाब का सामना किया। इल्म और जहालत का फर्क। आयत इन लोगों के रवैये को जाहिर करती है जो इल्म की कमी और जद की वजह से अल्लाह की निशानियों को झटलाते हैं। निशानियों का मुतालिबा। बाज लोग हैं वाज़ेह निशानियों के बावजूद मजीद निशानियों का मुतालबा करते हैं, हालांकि उनकी नीयत सच्चाई को कबूल करने की नहीं होती। साबिका इम्तों की मुशाबहत। माजी की इम्तों ने भी उसी तरह के एतराज़ात किए और उनका इंजाम उनके रवैये के मुताबिक हुआ। यकीन रखने वालों के लिए निशानियां। आयत ये वाज़ेह करती है कि अल्लाह की निशानियां इन लोगों के लिए फ़ायदामंद हैं जो सच्चे दिल से यकीन रखते हैं। ज़द्दी रवैये की मजम्मत। ज़द्दी और हट धर्म रवैया इंसान को हिदायत से दूर करता है और उसे अल्लाह की निशानियों से महरूम कर है देता है। हिदायत के लिए दिल की नरमी ज़रूरी है। अल्लाह की कुदरत और हिकमत को समझने के लिए इंसान का दिल खुला और नरमी वाला होना चाहिए। अल्लाह की हिकमत पर भरोसा। अल्लाह की हिकमत इन लोगों के एतराज़ात से बालातर है। वो जानता है कि किस वक्त किसको क्या देना चाहिए। खलासा, ये आयत हमें अल्लाह की हिकमत, कुदरत और इंसान की ज़दी है, फितरत के बारे में कीमती सबक देती है। यकीन, अखलास और अल्लाह की निशानियां देखकर हकीकत को कबूल करना ईमान की बुनियादी शर्त है, जबकि ज़द और इनाद हिदायत से महरूमी का सबब बनते हैं। डॉक्टर की हदायत को नज़रअंदाज करना। एक मरीज़ डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसे दवाई देता है और मुकम्मल इलाज के लिए हदायत फराहम करता है, लेकिन मरीज़ बार बार कहता है कि मैं उसी वक्त सेहत याब हूँगा जब आप मुझे फ़ौरन ठीक कर दें या कोई मौजज़ा दिखाएं। पैगाम, डॉक्टर के दिए गए इलाज को नज़रअंदाज करना मरीज़ की अपनी नासमझी है, हालांकि इलाज का रास्ता वाज़ेह है। इसी तरह अल्लाह की निशानियों को मानने के बजाय मज़ीद मुतालबात करना इंसान की ज़द और जहालत को ज़ाहिर करता है। इम्तिहान में रहनुमाई को मुस्तरद करना। एक तालिब इल्म के लिए उस्ताद नसाब और तमाम ज़रूरी मवाद मुहैया करता है ताकि वो इम्तिहान में कामयाब हो सके, लेकिन तालिब इल्म कहता है कि मुझे पहले ही नसाब मुहैया करना चाहिए ताकि मैं इम्तिहान में कामयाब हो सके। से इम्तिहान का नतीजा बताएं या कामयाबी की गारंटी दें, वरना मैं मेहनत नहीं करूँगा। पैगाम, उस्ताद की दी गई रहनुमाई को कबूल करना ही कामयाबी की कुंजी है। इसी तरह अल्लाह ने वाज़ेह निशानियों के ज़रिए हमें हिदायत दी है और इन निशानियों को झटलाना हमारी हिदायत से महरूमी का बायस है। रास्ता मालूम होने के बावजूद ज़द करना। एक शख्स को बताया जाता है कि एक ख़ास रास्ता महफूज और सीधा है, लेकिन वो ज़द्दी तबीयत की वजह से कहता है, मुझे तब यकीन आएगा जब मुझे खुद रहनुमा साथ लेकर चले। पैगाम, महफूज रास्ता पहले से वाज़ेह है और मज़ीद वजाहत या रहनुमाई का मुतालबा महज ज़िद है।
अल्लाह ने कुरान, कायनात की निशानियाँ और नबी की तालीमात के ज़रिए हुदायत का रास्ता वाज़ह कर दिया है, लेकिन ज़द्दी लोग मज़ीद निशानियाँ मांगते हैं। खलासा, ये मिसालें आयत का मफ़हूम वाज़ह करती हैं कि अल्लाह ने दुनिया में हर तरफ निशानियाँ रखी हैं जो उसकी कुदरत, हुकमत और हदायत को ज़ाहिर करती हैं। मज़ीद निशानियों का मुतालिबा ज़िद और नाफरमानी की अलामत है, न कि सच्चाई को तस्लीम करने की। हमें मौजूदा निशानियों पर गौर व फिक्र करना और उनसे हदायत हासिल करनी चाहिए। अल्लाह की निशानियों को पहचानना। आज के दौर में कायनात की तख्लीक, इंसानी जिस्म का पेचीदा निज़ाम और ज़मीन पर मौजूद वसाइल-उल्लाह की वाज़ेह निशानियां हैं। लेकिन बाज़ लोग इन निशानियों को नज़रअंदाज करके मज़ीद मौजिज़ात का मुतालबा करते हैं, जो उनकी ज़द और नाफरमानी को ज़ाहिर करता है। साइंसी तरक्की और अल्लाह की निशानी। जदीद साइंस हमें कायनात के राज़ों से आगाह करती है, लेकिन ये सब अल्लाह की तख्लीक की निशानियां हैं। ये आयत याद दिलाती है कि इन मालूमात को अल्लाह की कुदरत के तौर पर देखना चाहिए, न कि शक व शिबा के तौर पर। ईमान की बुनियाद। आज भी बहुत से लोग अल्लाह के वाज़ेह पैगाम, कुरान और रसूल की तालीमात को नज़रअंदाज करके इजाफी सबूत या निशानियां तलब करते हैं। ये आयत हमें याद दिलाती है कि ईमान देखने या मौजज़े के बगैर दिल की गहराई से होना चाहिए। जिंदगी के मसाइल। मौजूदा दौर में इंसान अक्सर शिकायत करता है कि उसकी दुआएं कबूल क्यों नहीं हो रहीं, हालांकि अल्लाह ने जिंदगी में बहुत सी नामतें और निशानियां दी हुई हैं। ये आयत हमें इन निशानियों की अहमियत पर गौर करने की दावत देती है। अल्लाह की दी गई निशानियों पर यकीन। अल्लाह ने कुरान, कायनात और नबी के ज़रिए अपनी निशानियां वाज़ेह कर दी हैं। उन पर गौर व फिक्र करना और उन्हें मानना ईमान की बुनियाद है। ज़िद्दी रवैये से बचना। अल्लाह की निशानियां देखने के बावजूद मज़ीद मुतालबात करना एक ज़िद्दी रवैया है जो हदायत से दूरी का सबब बनता है। यकीन की अहमियत। हदायत पाने के लिए दिल में यकीन का होना ज़रूरी है। शक व शिबा ईमान को कमज़ोर करता है। साबिक़ा इम्मतों की गलतियों से सबक। माज़ी की कौमों ने भी यही रवैया अपनाया और अल्लाह की नाराज़ी का सामना किया। हमें उनकी गलतियों से सबक हासिल करना चाहिए। कुरान की रहनुमाई पर एतमाद। कुरान एक मुकम्मल हिदायत है और हमें उससे रहनुमाई हासिल करने के लिए किसी इजाफी निशानी की ज़रूरत नहीं। अल्लाहुम्मा ज़िदना ईमानन व यकीनन बिआयातिक व हुक्मिक। ए अल्लाह, हमारे ईमान और यकीन को अपनी निशानियों और हिकमत के ज़रिए मजबूत कर दे। आमीन। अल्लाहुम्मा अज़िल मिन क़ुलूबिना कुल्ल शक्किन व इनाद वजअलना मिनल मुमिनीन। ए अल्लाह, हमारे दिलों से हर शक और ज़द को दूर कर दे और हमें ईमान वालों में शामिल कर। आमीन। रब्बना अरिना आयातिक फ़ी कुल्लि मा खलक़्त वजअलना शाकिरीन लिनिअमतिक। ए हमारे रब, हमें अपनी निशानियों को हर मखलूक में दिखा और हमें अपनी नामतों का शुक्रगुजार बना। आमीन।